Hello everyone. So here we are discussing the test sheet which we have basically conducted on Saturday. So initially we have covered with the section A question number 1. Now there are question 2 and 3. There are question which is based on electric what is based on basically null point, isn't. Just try to look at the question. What the question says, there are 2 point charges 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. The location of a point on a x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges in 0 is 0 from charge 8q. Right. So here we have to check for the uh, null point whether electric field is going to be 0. Now try to make the diagram of now try to make the diagram, right? So what the question says actually, that we have question says that we have two charges, one of 8 coulomb and another of minus 2 coulomb, one of 8q and one of minus 2q. Let this is an okay. Now let this is an x-axis, right? Let this is a x-axis. Whether you have placed two charges, first charge first charge first charge is basically this one is first charge. It is of, suppose let it is of 8 plus 8q. Now there is another charge and that is of minus 2q, and this 8q is at x equal to 0 and this minus 2q is at x equal to L. That means the distance between that distance between 8q and minus 2q is L. Now here we have to find out the location. What the question says once again, the location of a point on the x-axis at which net electric field to these 2 point charges is 0 from charge 8q. Now here we have to find out the point at which electric field is going to be 0. Now the question 1 is whether the electric field can be 0. So this is a positive charge, this is a negative charge, and we know that the electric field emerges from the positive charge and electric field is terminates at the negative charge. Or you can say that पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है. तो अगर हम पॉइंट यहाँ पे मान लो बीच में कंसीडर करें, लेट पॉइंट इज इन बिटवीन द चार्ज. मान लो हमने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, राइट. अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आप देखो 8q की वजह से, तो 8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इट वुड बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. लेट इट इज इवन. और माइनस 2q की वजह से भी क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, राइट की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा E2. तो इफ वी आर टेकिंग पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस, देन वी आर नॉट गेटिंग सच अ सिचुएशन दैट E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है. और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अल्टीमेटली दे कुड बी एडेड अप, डजंट. दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा, और अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगा तो वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव जीरो वैल्यू. हमें यहाँ इसको जीरो नहीं पा सकते. देन व्हाट एल्स यू कैन डू. तो बात हमें पता चल गया कि भाई इस केस में आप बीच में तो आप पा नहीं सकते हो, बीच में तो आपको नहीं मिलेगा. तो ये हमने जो काम किया तो सही काम नहीं किया. Now we have
reasons whether we can get a zero electric field. First one is left to the left charge, and second one is right to the right side. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो है नहीं, या तो ये है या तो ये है। तो इसके पहले इलस्ट्रेशंस में, मतलब इसके पहले जो हमने आपको क्लास में कंटेंट कवर किया, वहां मैंने आपको बताया था कि जो नल पॉइंट होता है दैट लाइज क्लोजर टू दैट चार्ज व्हिच हैव लेस मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था कि जो नल पॉइंट होता है वो ऐसे चार्ज के आसपास होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो अगर आप कंपेयर करो 8Q और -2Q में, अगर आप कंपेयर करो तो मैग्नीट्यूड मतलब उनके मॉड की वैल्यू, तो आप ये देखो 2Q वाला चार्ज छोटा है और 8Q वाला चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर छोटा है तो जो नल पॉइंट होगा वो -2Q के ही आसपास होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये कहाँ पर होगा, तो आप एक पॉइंट करो, आप यहाँ पर एक पॉइंट एलोकेट करा, क्योंकि ये इसके करीब होगा, इधर नहीं होगा। नल पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, छोटे चार्ज के करीब, बीच में हो नहीं सकता है। अगर आप यहाँ ले लोगे तो 2Q से 8Q के करीब और 2Q से दूर चला जाएगा, अल्टीमेटली कहाँ पर होगा, अल्टीमेटली होगा यहाँ ये 2Q के आस। दैट इज दिस इज अ पॉइंट जहाँ पर हमें नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल सकता है। तो क्वेश्चन इज कि आखिर ये यहाँ से कितनी दूरी पर होगा। तो आप इस डिस्टेंस को यहाँ से -2Q से, ये वाले चार्ज से, इसको आप मान लो x मान लो, राइट। अब इसको x मान लो, जैसे आप इसको x मानोगे, ये जो 8Q से जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा x प्लस l, तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x प्लस l। अब आप P पॉइंट पर देखो, P पॉइंट पर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो P पॉइंट पर दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। एक तो आपका करेगा 8Q का चार्ज, तो 8Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट वर्ड होगा, मतलब ये बाहर की तरफ होगा, तो आप इसको लिखोगे E ड्यू टू 8Q, राइट वर्ड। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, -2Q, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और आप लिखोगे E ड्यू टू -2Q। आप यहाँ पे नेट 0 चाहते हो, का मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ ट्राई टू पुट द कंडीशन कि, ठीक है, आप लिखो इफ EP is equal to 0, that implies that E minus 2Q is equal to E 8Q, ये इसके बराबर हो जाएगा। और E minus 2Q की अगर वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास K इंटू 2Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा। और आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू आती है K Q अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं, K इंटू 2Q, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप ये डिस्टेंस देखो -2Q से, अगर आप ये डिस्टेंस देखो -2Q से ऊपर देखो, आप अगर आप ये डिस्टेंस -2Q से इस पॉइंट का देखो तो x के बराबर है, तो आ जाएगा x। द सेम वे 8Q से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8Q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है 8Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये x प्लस एल के बराबर है, आप लिखोगे x प्लस एल का स्क्वायर। फाइल टीचिंग इन द क्लास मैंने देखा तमाम बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हम यहाँ पे वापस साइन लिखेंगे, क्या हम यहाँ -2Q लिखेंगे या 2Q लिखेंगे। देखो, जब आपने यहाँ वेक्टर बना दिया, तो आपने वेक्टर बना दिया और उसका डायरेक्शन लिख लिया, तो डायरेक्शन दिखा दिया, आपको वापस यहाँ माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाए, क्योंकि वो नेगेटिव का मतलब ही हो गया कि नेगेटिव उसकी पोलैरिटी है और वही उसका डायरेक्शन डिसाइड करती है, और उसका हमने यूज वेक्टर इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बनाने के लिए कर लिया है। नाउ ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन। K ने K को कैंसिल कर दिया, Q ने Q को कैंसिल कर दिया, 2 and 8 is gone, 2 से 8 चला जाएगा, तो देन रिमेनिंग इज 1 by x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x प्लस l का स्क्वायर।
ग्रेट, नाउ टू ट्राई टू टेक द रूट्स ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड का रूट ले लें, तो इट इज 1 बाय x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस l, क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस l, तो इसको सॉल्व करेंगे देन 2x माइनस x इज x इक्वल टू l, मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, तो चार्जेस हमने लिया था, तो हमने चार्जेस लिया है, यहाँ वाला चार्ज हमारा था 8q, ये वाला चार्ज था हमारा -2q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l के बराबर था, और आपको जो नल पॉइंट मिला है वो यहाँ से भी l डिस्टेंस पर मिला है, क्योंकि आपको x, यही तो x था, इस x की वैल्यू आपने l कैलकुलेट किया है, नल पॉइंट कहीं यहाँ पे मिला है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 8q से उसका डिस्टेंस बताओ, मीन्स यहाँ से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज l प्लस l, आंसर इज 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 के बराबर आएगा, राइट, आंसर क्या आएगा 12 के बराबर आएगा, एंड आई होप ये इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो एक बात आप याद रखो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट उनके बीच में नहीं होता है, उसके इन बिटवीन चार्जेस नहीं होता है, इसके बाहर होता है, और उस चार्ज के करीब में होता है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता है, थोड़ा छोटा होता है। थैंक यू, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन